Hello everybody. Today's topic is final account. We are going to see the basic of final accounts, the requirement and how the final account is prepared. Take the textbook for your reference. Page number 272. We are going to see the meaning of final account. The primary aim of accounting is assessment of business performance for the benefit of all stakeholders, that is owner, employee, supplier, customer, financier, etc., which also helps them to form their opinion on the financial position of their business concern. For this purpose, various accounting reports are prepared in the form of final account at the end of every financial year. In brief, final accounts are financial statement which explain the working result and financial status for the specific period of time on a particular date. It is a set of trading account, profit and loss account एंड बैलेंस शीट. फाइनल अकाउंट में तीन मेन अकाउंट बनाने होते हैं. पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है फाइनल अकाउंट और थर्ड वन है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट. Balancing figures of a trading account is called as gross profit or gross loss. In the case of profit and loss account, the balancing figure is net profit or net loss. Whereas balance sheet shows the financial position of the assets and the liability at a given period of time. इन शॉर्ट फाइनल अकाउंट इज़ नथिंग बट इट्स अ मिरर. एक आईना है जिससे आपको बिजनेस का परफॉर्मेंस समझ में आता है. और नॉट ओनली दैट, द मेनी पीपल्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस. फॉर एग्जांपल ओनर को तो पता चलना चाहिए जो कंपनी में चला रहा हूँ वो प्रॉफिट मेकिंग है क्या नहीं. एम्प्लॉय को भी पता चल जाता है कि इस कंपनी को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, बिकॉज ही और शी गेट्स अ सैलरी. सप्लायर भी, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल वो सप्लाई करता रहता है, because the supplier supplies the raw material on cash or might be on the credit basis. तो क्रेडिट वर्दीनेस है क्या नहीं कंपनी का, ये भी डिसाइड होता है फाइनल अकाउंट के ऊपर से. सेम वे द कस्टमर एज वेल एज द फाइनेंसर जो पैसे कंपनी में लगाता है, फ्रॉम होम द कंपनी बोरोज द मनी. सो ऑल दीज पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, विच इज़ मोस्ट प्रोबेबली known by the final account which is prepared by the concerned companies. और फाइनल अकाउंट ये 1 ईयर के पीरियड के लिए होता है, पर्टिकुलर 1 फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल एंड एंड्स ऑन मार्च. और 3 अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड 1 स्टेटमेंट दैट इज़ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट विच शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. Now let us see the objectives of final account. First one is to determine the gross profit or gross loss and net profit and the net loss of the company during the financial year. एक ईयर में कंपनी ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट या तो नेट प्रॉफिट कमाया है, अगर उनको लॉस होता है तो वो कितना हुआ, क्यों हुआ, ये डिटेल स्टडी फाइनल अकाउंट से हो सकती है. सेकेंड पॉइंट, the final account shows the true and correct financial position of business. अपने बिजनेस की ट्रू और फेयर पिक्चर आपको फाइनल अकाउंट के ज़रिए मालूम हो सकता है. Then it informs the operating results and extract a financial position of the business to the stakeholder to take the financial decision. And the last, it enables to control the financial activities of a business effectively. Now see part we will see importance of final account. First one, final account are the basic or the base on which the management or the businessman decides a business policies and take the financial decision. In short, we can say the final account helps the management to
हैव अ क्विक डिसीजन, यानी जो भी डिसीजन बिजनेस रिलेटेड लेना हो तो वो फाइनल अकाउंट के ज़रिए क्विकली ले सकते हैं, क्योंकि डिटेल एनालिसिस आपके सामने होता है ड्यू टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ट्रेडिंग में क्या हुआ था, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है, और फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट से पता चल जाती है, तो डिसीजन पावर बढ़ जाती है और फ्रेमिंग ऑफ द पॉलिसीज ऑल्सो मेक्स ईजी. Second one, final account gives a true picture of the financial status of the business for the financial year. Next one, final accounts are useful for the accurate accounting record. Fourth one, transparency in the business dealing are possible due to the financial statement. Now fifth one, final account helps to get a clear breakup of the amount payable to the government as a various taxes, for example income tax, GST, etc. फाइनल अकाउंट अगर आप मेंटेन रखते हो प्रॉपरली तो आपको पता चल जाता है कि कितना एग्जैक्टली टैक्स पे करना है, आपका इनकम कितना है, उसके प्रोपोर्शनेट टैक्स निकाला जाता है, एंड यू कैन पे टू द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ इनकम टैक्स और GST, etc. देन लास्ट वन, इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, कंपलसरी होता है टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेट ऑफ एनी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. तो फर्स्ट स्टेप इज ट्रेडिंग अकाउंट. फाइनल अकाउंट में हमें सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है. नाउ द ट्रेडिंग अकाउंट इज अ अकाउंट विच गिव्स द ओवरऑल preview of the trading activity. The expenses and the losses related to the trading activities are debited to this account. यानी जो भी खर्चे आप करते हो या लॉसेस होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं. एंड ऑल आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड द स्टॉक ऑफ द गुड्स at the end of the year are recorded to the credit side of this account. यानी जो भी गुड्स जो बाहर निकलते हैं, फॉर एग्जांपल फिनिश गुड्स है, मैन्युफैक्चर हो चुके हैं और वो सेल हो रहे हैं, या तो फिर कुछ माल बच चुका है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है. डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज ओपनिंग स्टॉक. लास्ट ईयर का जो माल बचा हुआ था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा. उसके बाद उसमें हम और परचेसेस करेंगे साल भर में तो वो ऐड होंगे. एंड ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल लेबर, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, कोल्ड, गैस, फ्यूल, वाटर, मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सभी डेबिट साइड में जाएंगे, विच आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. Similarly, credit side of trading account includes clothing stock, sales, less return. Sales में से less होगा. Any kind of goods that is used for promotion करने के लिए suppose free sample भेजा है या distribute किया है as a free sample and the goods withdrawn by the proprietor for the personal use. अगर किसी पार्टनर ने या तो ओनर ने कुछ गुड्स कंपनी में से, बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए अगर यूज़ किए गए हैं तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं. दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड. देयरफॉर इट इज सेड ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू असरटेन द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 1 year. When there is a credit balance, it is referred to as a gross profit, and when there is a debit balance, it is referred to as a gross loss, which is transferred to profit and loss account. Trading account is a nominal account. अभी क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस क्या होता है, व्हेन वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट सेशन, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि क्रेडिट बैलेंस क्या होता है एग्जैक्टली, एंड what is a debit balance and how that balance is getting transferred to profit and loss account. Trading account is divided into two side, debit side and credit side. Debit side में आपको particulars दिख रहा है and 2 amount columns are there, जिसे inner and outer ऐसे कहा जाता है. Whereas in the credit side again there is a particulars and 2 amount column, inner and outer. Now let us understand
each and every item slowly and gradually, step by step. If you want, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड सब्सिक्वेंटली आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन अच्छी से लिख के निकालिए एंड ट्राई टू मेमोराइज इट प्रॉपरली. नाउ सी द फर्स्ट आइटम, ओपनिंग स्टॉक, दैट विल गो टू आउटर कॉलम. उसके नीचे आता है टू परचेसेस, इनर कॉलम में आएगा. उसमें से परचेस रिटर्न लेस होगा, लेस परचेस रिटर्न इन इनर कॉलम इटसेल्फ, और माइनस करने के बाद वो फिगर आउटर कॉलम में जाएगी. दिस टू आइटम्स आर वेरी फिक्स एज पर एज ट्रेडिंग अकाउंट इज कंसर्न. जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ये तीनों आइटम आपको कंपलसरी लिखने ही है. टू ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे टू परचेसेस एंड लेस परचेस रिटर्न, मीन्स यू हैव टू मेक द प्रोविजन फॉर दिस आइटम कंपल्सरली. आफ्टर दैट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके नीचे टू फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, टू कस्टम ड्यूटी, टू वेजेस, टू कोल, गैस, फ्यूल, ETC, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू रॉयल्टी. और ये जो एक्सपेंसेस है ये ऊपर नीचे अगर आप लिखते हैं तो भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस एंड परचेस रिटर्न शुड बी एट द टॉप ओनली. Now let us see the trading account credit side. First item will be sales, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा. सेल्स रिटर्न को दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड. आफ्टर दैट बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल, दैट विल ऑल्सो go to trading account credit side. Then buy goods taken by the proprietor for the personal use. उसके बाद clothing stock and then gross loss. These are the some of the items of trading account credit side. इसमें से सेल्स रिटर्न और क्लोथिंग स्टॉक तो कंपलसरी किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में होता ही है. सो दिस आइटम्स आर 99% फिक्स आइटम, वो आप ध्यान में रखिए एंड मेक मार्किंग और जस्ट अंडरलाइन दिस आइटम्स, सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक. सेल्स एंड सेल्स रिटर्न विल कम टू इनर कॉलम, लेस करने के बाद वो आउटर कॉलम में जाएंगे, मगर क्लोजिंग स्टॉक विल ऑलवेज गो टू आउटर कॉलम. Profit and loss account is maintained to ascertain net profit और net loss. ट्रेडिंग अकाउंट से पता चल जाता है हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलता है नेट प्रॉफिट या net loss. The debit side of a profit and loss account include all the indirect expenses such as office and administrative expenses, financial expenses, selling or distribution expenses, etc. वैसे ही credit side of a profit and loss account includes indirect incomes like commission received, rent received, डिस्काउंट ऑन ETC. जो भी हमें मिलता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है. व्हेन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, इट इज कॉल्ड एज अ नेट प्रॉफिट, एंड व्हेन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, इट इज कॉल्ड एज अ नेट लॉस. नेट प्रॉफिट और अ नेट लॉस इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. Now let us see the profit and loss account debit side. पहला आइटम आता है हमेशा ग्रॉस लॉस, उसके नीचे सैलरीज एंड वेजेस, देन टू रेंट रेट टैक्सेस, टू इंश्योरेंस, टू बैंक चार्जेस, टू डिस्काउंट अलाउड, टू ऑडिट फीस एंड टू डेप्रिसिएशन ऑन. जितने भी हमारे फिक्स एसेट हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बताया जाएगा कि लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन दो, या तो प्लांट एंड मशीनरी पे 100 डेप्रिसिएशन दो, परसेंटेज बताया जाएगा. तो वो परसेंटेज आपको निकालना है, एंड उसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. इन दिस केस कि प्लांट एंड मशीनरी, देन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सभी का डेप्रिसिएशन इनर कॉलम में लिया है और टोटल करके फिर वो उन्होंने ट्रांसफ़र किया है आउटर कॉलम में. देन टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू एडवर्टाइजमेंट, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू रेंट पेड, टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय थीव्स, टू पैकिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, ये सभी आइटम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में. नाउ टू बैड डेट्स ओल्ड,
टू बैड डेट्स ओल्ड यानी ट्रायल बैलेंस में आपको जो बैड डेट्स दिया गया रहेगा उसको लिखना है टू बैड डेट्स ओल्ड, उसमें ऐड करना है न्यू बैड डेट्स। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बैड डेट्स दिया हुआ रहेगा तो वो ऐड होगा। देन टू न्यू RDD, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको नया परसेंटेज ऑफ RDD माइट बी गिवन, वो भी इसमें आपको ऐड करना है। उसके बाद वो टोटल लेना है इनर कॉलम में ही और उसमें से लेस करना है लेस ओल्ड RDD जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। एंड लाइकवाइज ये सभी ऐड लेस करने के बाद आपको वो अमाउंट लेनी है आउटर कॉलम में। एंड द लास्ट आइटम विल बी टू नेट प्रॉफिट विच इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी वो कैपिटल में जाके ऐड होगा। नाउ वी विल सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। फर्स्ट आइटम विल बी बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन इफ एनी। इफ एनी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो उस टू का यहाँ पे आके होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। उसके बाद बाय रेंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बाय मिसलेनियस इनकम, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड लास्ट आइटम विल बी बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस होता है तो वो कैपिटल अकाउंट में से लेस होगा, दैट विल गो टू बैलेंस शीट। नाउ द लास्ट पार्ट विल बी द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। बैलेंस शीट से हमें पता चल जाएगी कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। बैलेंस शीट शोज हैज़ नो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ये अकाउंट नहीं है, इट्स अ स्टेटमेंट है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज़ liability side and right hand side of the balance sheet is asset side. Both the side of the balance sheet should be equal amount, दोनों भी टैली होना चाहिए। Balance sheet shows the assets and the liabilities of the business. All the debit balances of the personal and real account are shown on the asset side, and all the credit balances of the personal account are shown on the liability side. No nominal account will appear in the balance sheet. ये लास्ट के 3 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको अंडरलाइन करके रखिए। नाउ वी विल सी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। फर्स्ट आइटम होता है हमेशा कैपिटल। वो कैपिटल का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रहता है विच इज़ एडेड बाय द नेट प्रॉफिट। जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो नेट प्रॉफिट मिलेगा वो कैपिटल में ऐड करना है। अगर कैपिटल के ऊपर कुछ इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा तो वो भी ऐड होगा और वही टोटल आपको इनर कॉलम में लेनी है। उसमें से ड्राइंग लेस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेस हो जाएगा। हाँ, अगर लॉस होता है, नेट प्रॉफिट है वैसे नेट लॉस रहेगा तो वो लॉस माइनस करना है और अमाउंट लेनी है आउटर कॉलम में। देन नेक्स्ट आइटम बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, sundry credit bills payable, outstanding expenses, pre-received income. These are all liability. Liability यानी एक डेप्थ, कर्जा जो कंपनी के ऊपर है जो उनको पे करना है, that all the things will be written on the liability side. Now let us see balance sheet asset side. Cash in hand, cash at bank, bills receivable, sundry debtors, goodwill, furniture, plant and machinery, land and building, prepaid expenses, outstanding income, closing stock. These are all the assets. Asset यानी property जो किसी कंपनी की हो सकती है, that are all recorded on the balance sheet asset side. So in this way we have completed the basic of final account जिसमें trading, profit and loss और balance sheet cover किया गया है, and try to memorize it so that it will be easy for you to solve the further problems. In a subsequent session we are going to solve the problems, and do refer the videos related to the adjustment entries. Most important adjustment entries के भी videos मैंने डाले हुए हैं। I will leave the
link of it in a description box, and so please watch to that and try to solve the problem and practice the most. Practice makes a man perfect. आपको accounts में practice ज़्यादा करनी है. Thanks for watching.